Hello students, I Shaheen Kapasi, your mathematics teacher, welcomes you to Jafri and Fatima English School. So as you know children that we were on your chapter number first, the fish tale from your math magic textbook, and also in this chapter we have seen some interesting topics, and also we have completed our explanation part of that topics. And also one good news is there for you that today we are going to complete this chapter. So I hope children that you have understand the previous videos explanation part, and we hope that you will practice it twice at home to get good marks in your exam. The explanation part, practice time questions which we have solved in our earlier videos, in earlier classes, you have to solve it. So let's start with our today's topic of your chapter number 1, the fish tale. The name of the topic is Women's Meenkar Bank. So as you know children, in our previous video also I have given some introduction part of this topic, that is Women's Meenkar Bank. Let's see what is given here. First question. The meeting of the Meenkar Bank has just begun. Fazila is the president. 20 fisherwomen have made their own bank. Each saves rupees 25 every month and puts it in the bank. A question. How much money does the group collect each month? Now as you know children that we have already discussed in our previous session that in Women's Meenkar Bank, in this bank some fisherwomen are there and they are saving their money in that bank. So Fazila is one fisherwoman and she is the president of this bank, and 20 fisherwomen have made this bank. मतलब 20 फिशरवुमेन मिलके उन लोगों ने ये एक बैंक बनाया है वुमेन मीनकर बैंक. एंड हर एक फिशरवुमेन जो है वो क्या करती है, हम खुद का पैसा सेव करती है. हाउ मच मनी दे आर सेविंग? ईच आर सेविंग रुपीज़ 25 एवरी मंथ. दैट मीन्स दे आर सेविंग 25 रुपीज़ एवरी मंथ एंड दे आर पुटिंग इन द बैंक. So what we have to calculate, they are telling that how much money does the group collect each month. मतलब ये जो ग्रुप है वो लोग हर महीने कितना अमाउंट कलेक्ट करते हैं, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो हाउ वी विल कैलकुलेट? वी विल कैलकुलेट दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द पैराग्राफ. दैट मीन्स ए क्वेश्चन के ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज़ 20 फिशर वुमेन्स आर देयर, राइट, एंड ईच आर सेविंग रुपीज़ 25 एवरी मंथ. सो दे आर आस्किंग दैट ग्रुप जो है उन लोगों ने कितना मनी जो है कलेक्ट किया हर महीने in each month. So we can calculate like this, that collection of one woman is equals to rupees 25. मतलब बोल रहे each saves rupees 25, मतलब हर एक woman जो है वो 25 रुपीज़ सेव करते हैं, right. So we have written here that collection from one woman is equals to rupees 25. मतलब एक फिशर वुमेन जो है वो 25 रुपीज़ सेव करती है हर महीने. Hence collection from 20 women, as they are asking for group. So we know that in a group, in this Women's Meenkar Bank, 20 fisher women are there. So we have written collection from 20 women is equals to 20 multiplied by 25. Why we have done 20 multiplied by 25? Because they have given the information here that 20 fisher women are there and each are saving rupees 25 every month. So we will multiply 20 into 25, we will get rupees 500. That means rupees 500 this group collects each month. Or you can write like this, that each fisherman saves rupees 500. Or we can say that rupees 500 are collected each month by the group. Now moving on to second one children, B1.
हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years. नाउ दे आर सेइंग दैट अगर इस तरीके से कलेक्शन होता रहा ग्रुप से तो 10 साल के बाद कितना कलेक्शन होगा, मतलब 10 साल में कितना कलेक्शन हमने किया होगा वो हमको कैलकुलेट करके बताना है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट. सो एज यू नो चिल्ड्रन, कलेक्शन ऑफ 1 month इज इक्वल्स टू ₹500. मतलब जब 25 फिशर वुमेन सारे जब 20 फिशर वुमेन सारे जब मिला के मनी कलेक्ट करते हैं, मतलब 20 फिशर वुमेन जब 25 रुपीज़ हर महीने डालते हैं अपना, तो ईच मंथ यानी एक महीने में वो 20 फिशर वुमेन का अमाउंट जो है पूरा कलेक्ट होता है वो होता है ₹500 एज वी हैव सीन इन अवर A1 सम. तो वही हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे. पहले हम लोग ये बता देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ 1 month इन रुपीज़ इज इक्वल्स टू 500. मतलब ₹500 जो है वो एक महीने में कलेक्ट होता है 20 फिशर वुमेन का पैसा सब मिला के. तो हैंस कलेक्शन ऑफ 1 year. अब हमको बताया है 10 years के बारे में पहले कि कलेक्ट कितना होता है मनी वो बताओ. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 year का कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल jump it to 10 year. Okay, so collection of 1 year is equals to, as you know that in 1 year there are how many months, 1 year is equals to 12 months, right. एक साल में 12 महीने होते हैं. so 1 year is equals to 12 months. so we will multiply it by 12. मतलब ₹500 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. so if we will multiply this 500 into 12, what we will get. Yes, 12 5 is 60 and 0 0. That means 6,000 rupees. So we can say that there are 12 months in a year. So we have multiplied it by 12. तो 500 into 12 मतलब एक साल में 20 फिशर वुमेन का कितना पैसा जमा होता है बैंक में, 6,000 rupees. Okay. So till here we have done for 1 year. Now we will move on to 10 years, which is asked in the question. First we have calculate for 1 year and then we will move on to our 10 years part. तो अभी 10 years का अगर हमको कैलकुलेट करना है, so what we will do, 6,000 multiply by 10. That means 6,000 into 10, that we will get 60,000 rupees. इसका मतलब 10 साल में कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, 60,000 rupees. So we can write here that the money collected in 10 years is equals to 60,000 rupees. So इस तरीके से जो है हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पहले 1 year का कलेक्शन देखा, फिर बाद में हमने 10 years का कलेक्शन देखा. So this was the introduction part of your Women's Minker Bank, that what is there in this Women's Minker Bank. Now we will solve some word problem questions regarded to this only. Practice time questions. Let's start reading first one, children. You also can read with me, children, so that your reading also get perfect. First question. Gracie needs money to buy a net. Chassie and her sister want to buy a logboard, so they take loan from their bank. They will return it with interest. Now here they are saying that Gracie needs money to buy a net. Gracie जो है वो एक फ़िशर वुमेन है जिसको क्या करना है, नेट बाई करना है. आपको पता है जब भी फ़िशर वुमेन लोग जब फ़िश पकड़ने के लिए जाते हैं, फ़िश कैच करने के लिए, तो बड़ी बड़ी नेट्स उनको चाहिए रहती है, राइट. उसके अंदर ही फ़िश वो लोग पकड़ते हैं. सो दिस ग्रेसी जो फ़िशर वुमेन है उसको नेट खरीदना है एंड शी नीड सम मनी. ऑल्सो दे आर टेलिंग दैट झांसी एंड हर सिस्टर वॉन्ट टू बाई अ लॉग बोट. अब झांसी और उसकी सिस्टर जो है उसको लॉग बोट बाई करनी है टू गो फॉर कैचिंग द फिश. सो दे टेक लोन फ्रॉम बैंक. अब ये लोगों ने क्या किया, जो ग्रेसी और झांसी और उसके सिस्टर लोग हैं उन लोगों ने जो है बैंक से लोन लिया. दे हैव टेकन अमाउंट फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, एंड दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट. अब उन लोगों ने जो है लोन लिया, तो जाहिर सी बात है जब हम लोन लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है ना. व्हाट इज़ इंटरेस्ट चिल्ड्रन? इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है कि जब भी आपको कुछ ज़रूर हो पैसे की, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हम लोगों को इतना इतना अमाउंट की ज़रूरत है. सो नो डाउट बैंक क्या करती है, आपको पैसा देती है, बट हमको उनको बताना पड़ता है कि हम जो पैसा उनसे ले रहे हैं, बैंक से जो पैसा हम ले रहे हैं, वो पैसा कब रिटर्न करेंगे, राइट. तो हम अगर बोले उनको कि हम ये पैसा 3 months के बाद, 6 months के बाद, वॉट एवर योर कंडीशन एंड सिचुएशन में भी, उस हिसाब से हम अगर अपना पैसा रिटर्न करते हैं, तो वो पैसा जब हम रिटर्न करते हैं उसके साथ कुछ अमाउंट हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं.
हम लोग कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पे करते हैं? सो दैट बैंक को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। बैंक ऐसे ही तो नहीं बैठी है, राइट? बैंक अगर हमको पैसा दे रही है जब हमको ज़रूरत है, तो उनको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए बैंक को। सो जब बैंक हम लोगों को जब हमारी ज़रूरत पूरा करने के लिए जब हमको पैसे चाहिए रहती है तब देती है, तो उसको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं जब हम उसको पैसा रिटर्न करते हैं हमारा। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पे करते हैं उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। ओके, एंड दिस इंटरेस्ट अमाउंट वी आर रिटर्निंग टू द बैंक फ्रॉम दी विद द लोन अमाउंट। जो अमाउंट हमारा रहता है उसके साथ में लोन अमाउंट जो रहता है वो तो देना ही रहता है, नो डाउट, बट उसके साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन व्हाट इज गिवन A1। ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाई अ नेट। अब ये लोग बता रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि ए और बी में फ़र्क देख लेते हैं। ए में जो है ग्रेसी के बारे में सारी बातें होंगी और बी क्वेश्चन में झांसी और उसके सिस्टर के बारे में बात करेंगे, सो दैट उनके अमाउंट कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक ना हो। सो यहाँ पर आप लोगों को ए क्वेश्चन में बोला है ग्रेसी के बारे में कि अब ये ग्रेसी क्यों लोन ले रही थी, कितना अमाउंट का लोन ले रही थी, दैट ऑल थिंग्स वी विल सी हियर। So as we have seen in the paragraph which is given, अब ए के ऊपर जो पैराग्राफ है वहाँ पर हमने देखा था कि ग्रेसी क्यों लोन लेना चाहती थी, क्योंकि उसको नेट बाई करना था, राइट? सो दैट ओनली दे आर सेइंग कि ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाई अ नेट। अब ग्रेसी ने 4,000 का लोन लिया, क्या करने के लिए? नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। अब बता रहा है कि ग्रेसी जब उसने लोन ले लिया बैंक से 4,000 का, तो उसको रिटर्न भी करना है अमाउंट बैंक को, राइट? तो वो कैसे रिटर्न कर रही थी? वो हर महीने एवरी मंथ शी वॉज रिटर्निंग ₹345। हर महीने वो ₹345 बैंक को रिटर्न कर रही थी, और ऐसा उसने कब तक किया? फॉर 1 ईयर। देन व्हाट इज सेड, हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। अब उसने कितना अमाउंट बैंक को पे कर दिया होगा एक साल में, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो सी हियर चिल्ड्रन सॉल्यूशन पार्ट। मंथली इंस्टॉलमेंट पेड बाय ग्रेसी। मंथली इंस्टॉलमेंट पेड बाय ग्रेसी मीन्स कि हर महीने जो है ग्रेसी ने कितना अमाउंट रिटर्न किया बैंक को? ₹345। सो दैट ओनली इज गिवन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट मंथली इंस्टॉलमेंट पेड बाय ग्रेसी इज इक्वल्स टू ₹345। Now that next what they are asking कि how much money did she pay bank to the bank। उसने रिटर्न कितना अमाउंट किया होगा बैंक को? हम लोगों को बताया उसने एक साल तक जो है इस तरीके से हर महीने 345 जो है एवरी मंथ पे बैक किया बैंक को। तो कितना टोटल उसने पे बैक किया, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो हाउ वी विल कैलकुलेट चिल्ड्रन? टोटल अमाउंट पेड इन अ ईयर। क्या बोल रहे हैं? टोटल अमाउंट पेड इन अ ईयर। अ ईयर मतलब एक साल, 1 ईयर, राइट? तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? अभी हमने कैलकुलेट किया था, एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, दैट यू विल सी। तो सब महीने मिला के कितने होते हैं? जैन टू दिसंबर, टोटल 12 मंथ्स। सो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स आई कैन से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ₹345 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी कैन कम टू नो कि ग्रेसी ने कितना अमाउंट बैंक को पे किया। सो लेट्स डू दिस थिंग। 345 मल्टीप्लाई बाई 12। क्यों 12 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उसने 1 ईयर तक पे किया है। आपको बताया है कि उसने 1 ईयर तक इस तरीके से ₹345 हर महीने पे कर रही थी वो बैंक को, इसलिए हम लोग 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ, इसलिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सी ईयर मल्टीप्लीकेशन पार्ट। 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 4 जा 8 + 1 9, 2 3 जा 6। देन नेक्स्ट स्टेप वी विल पुट 0 हियर। 1 5 जा 5, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3। 0 9 + 5 14, 6 + 5 11, 3 + 1 4। दैट मीन्स ₹4,140 Gracie paid this much amount to the bank. So we will write our final statement that hence Gracie paid ₹4,140 to the bank, back to the bank। मतलब इतना अमाउंट उसने एक साल तक पे किया है बैंक को। So children, I hope that you have understand this sum nicely. Let's move on to our next sum. Now we will move on to our Jhansi and her sister. Now here you know children that Jhansi and her sister also are a fisherwoman, and we have seen in the a paragraph that they have told that Jhansi and her sister are taking the loan to buy a log boat.
बट कितने का उसने लोन लिया और कैसे वो पे बैक करने वाली है, दैट वी विल सी इन B1 सम. लेट्स सी B1 sum. Jhansi and her sister took a loan of rupees 21,000 to buy a logboat. They paid back a total of rupees 23,520 in 1 year. How much amount did they pay back every month? अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि झांसी और उसके सिस्टर जो है उन्होंने लोन लिया है, क्या करने के लिए, लॉग बोट बाई करने के लिए. कितने का लोन लिया उन लोगों ने, ₹21,000 का. एंड दे आर पेइंग बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर. अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग ने बताया कि उन लोग क्या कर रहे हैं, दे आर पेइंग बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर. मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि इतना अमाउंट जो है एक साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, वो लोग हर महीने कैसे अमाउंट पे करेंगे. सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस अमाउंट पेड इन 1 ईयर. यानी कि वो लोग सोच रहे हैं कि अगर अमाउंट हम लोग एक साल में भरते कितना, 23,520, तो एक महीने में वो लोग कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, ये था एक साल का बताया गया है. तो अगर एक साल का इतना कैलकुलेशन है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो लोग हर महीने कितना पे कर रहे हैं. सो अमाउंट पेड इन ए मंथ, अमाउंट पेड इन ए मंथ यानी कि एक महीने में वो लोग ने कितना पे किया होगा. तो आप लोगों को बताया है 1 ईयर का, राइट. सो हम लोग क्या करेंगे, 23,520 डिवाइड बाई 12. So if we will divide 23,520, here 0 is missing, so we will put here 0. 23,520 divide by 12, 23520 divide by 12. So our answer will be 1960 rupees. मतलब हर महीने वो लोग कितना पे कर रहे हैं, 1960 रुपीज़ पे कर रहे हैं बैंक को हर महीने टू कंप्लीट देयर लोन अमाउंट. इसका मतलब झांसी और उसके सिस्टर जो है हर महीने 1960 रुपीज़ पे कर रहे हैं बैंक को हर महीने, सो दैट देयर लोन अमाउंट विल बी क्लियर फॉर बाइंग देयर लॉग बोट. सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये पार्ट प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चंस जो है 2 वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया. नाउ मूव ऑन टू अवर NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 and 14. लेट्स सी चिल्ड्रन व्हाट इज गिवन इन दिस टॉपिक. Why don't we start a new fish dyeing factory? Now these fisherwomen are very much advanced and they are thinking about new innovative things. So they are thinking the idea of why don't we start a new fish dyeing factory. अब वो सोच रहे हैं कि क्यों हम फिश ड्राइंग फैक्ट्री क्यों ना स्टार्ट किया जाए, सो दैट उनके पैसे भी और बचे और साथ ही में सारी चीज़ें उन लोगों को वहीं पे अवेलेबल हो जाए. So the woman Minkar Bank also want to start a fish factory to dry fish. The Panchayat has given them some land for that. Over the years that they have saved ₹74,000. They find out how much they will need to for the factory. And here Fazila is writing the things they need to buy to begin. जैसे कि हम लोग भी सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, जब भी हम लोगों को कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम लोग भी क्या करते हैं, सारी चीज़ों की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले. देन ओनली वी मूव टू फर्दर पार्ट की क्या करना है आगे. So here also Fazila is the president, as you know, that of Women Minkar Bank, and also she is a best fisherwoman, and her ideas also getting growth डे बाय डे. मतलब उसका जो है आइडिया बहुत ही कमाल का होता है और वो सारी इम्प्लीमेंट सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से करती है. सो फजीला ने क्या किया, एक लिस्ट बनाया जिसमें उसने क्या किया, सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाय एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट. अब उसने एक जो है टेबल प्रिपेयर किया है जिसमें 4 कॉलम्स है. सबसे पहला कॉलम्स है आइटम का, जिसमें जो जो चीज़ों की उन लोगों को ज़रूरत है वो उन लोगों ने वहाँ पर लिख दी. एंड द प्राइस ऑफ ईच, मतलब हर एक चीज़ का प्राइस उन लोगों ने लिख दिया. देन नंबर ऑफ आइटम्स, कितना कितना चीज़ें उनको लगेंगी वो लिख दिया. एंड कॉस्ट, वो कॉलम खाली रखा है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग कॉस्ट जो है उसका हम फाइंड करके इसके आंसर्स लेके आएंगे कि भाई किस तरीके से इसका कॉस्ट होना चाहिए. देन लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन ऑल्सो. टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, यानी कि टोटल कॉस्ट हम लोगों को बताना है कि अगर उन लोगों को इस तरीके से ये फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा. सो दे आर थिंकिंग एंड डिसाइडिंग ऑल दिस थिंग्स. हम लोग प्लान बनाते हैं, वैसे वो लोग भी एक प्लान बना रहे हैं कि भाई इन लोगों को इस तरीके से फैक्ट्री स्टार्ट करनी है. सो हाउ मच कॉस्ट विल बी देयर. सो वी विल हेल्प देम टू फाइंड आउट दिस आंसर्स. देन लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट गिवन. व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट. अब बोला है कि जो फ्रेश फिश हम लोग मार्केट से लाते हैं उसको हम लोग अगर ड्राई कर दें, उसको हम लोग सुखा दें,
सो उसका वज़न जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसका वेट जो है वो कम हो जाता है। एज यू नो चिल्ड्रन दैट अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा ये प्रोसेस जो ऑनियन का प्रोसेस होता है उसमें भी ऐसे ही होता है। ऑनियन जब आप कट करो और उसको जब आप लोग रखो तो उसका जो वज़न होगा वो, और आप लोग सामने अगर वो ऑनियन को सुखा दो, उसको ड्राई कर दो, तो उसका वज़न यानी कि वो बिलिस्ता बन जाता है, अगर आपने सुना होगा ये वर्ड। सो वो ऑनियन ड्राई हो जाता है तो उसका वज़न कम हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ में से पानी सूख जाता है अगर आप इसको इस तरह से ड्राई कर सकते हो, ड्राई कर दो तो। इवन फॉर टमाटो ऑल्सो, अगर आप टमाटो का भी देखोगे तो इस तरीके से वो भी ड्राई हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरीके से ड्राई करके उसका वज़न कम कर सकते हो और उसको आप लोग कैरी करने में आसानी होगी और उसका वेट भी कम हो जाएगा। वैसे ही वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग फ्रेश फ़िश ला के हम लोग उसको ड्राई कर दें तो उसका वज़न क्या हो जाएगा, उसका वज़न 1/3 हो जाएगा उसके वेट से, मतलब कम हो जाएगा। इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब वो लोग सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग है तो थोड़ी फिश से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो लोग प्लान बना रहे हैं कि 1 महीने में हम लोग क्या करेंगे, 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश को ला के फिर ड्राई करेंगे। सो हम लोगों को कैलकुलेट करके उनको हेल्प करके बताना है कि हाउ मच ड्राइड फ्रेश फिश विल दे गेट इन अ मंथ, मतलब ड्राइड करके जो उनको फिश मिलेगी तो वो उन लोगों को 1 महीने में कितनी मिलेगी। जो फ्रेश फिश उन लोगों ने ड्राई कर दी है उसको, तो वो लोग को हर महीने जो है वो कितना फ़िश का अमाउंट मिले, फ़िश जो है वो कितना केजी हो जाएगी वो हमको बताना है यहाँ पर। देन नेक्स्ट व्हाट इज़ गिवन, सी द टेबल वी विल फिल लाइक दिस, क्योंकि कॉस्ट का टेबल खाली था तो वो हम लोग फिल करके बताएंगे उन लोगों को कि किस तरीके से उन लोगों का प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो डेट फजीला ने आइटम और प्राइस ऑफ ईच और नंबर ऑफ आइटम्स के कॉलम को फिल करके ऑलरेडी बताया है। कॉस्ट हम लोगों को फाइंड करना है हर एक का। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट वन, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर। तो बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर कितना प्राइस दिया हुआ है, ₹3000 और नंबर ऑफ आइटम्स है 1। सो वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द column of price of each and number of items so that we can come to know the cost of that item. So we will multiply this 3000 multiplied by 1, we will get 3000 rupees. Then for bamboo rack for fish drying, so it is 2000 we will, and number of items are 20, मतलब कितने बाम्बूस चाहिए रहेंगे, बाम्बू रैक्स चाहिए रहेंगे फिश ड्राइंग के लिए 20, और प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ ईच इज़ 20, प्राइस ऑफ ईच इज़ 2000. So number of items multiplied by price of each. So 20 into 2000 we will get 40,000. Then next सीमेंट टैंक, सीमेंट टैंक जो है वो ₹1000 की है और ऐसे हम लोगों को 4 चाहिए होंगी नंबर ऑफ आइटम, ईच का प्राइस है 1000, सो 1000 into 4 दैट मीन्स 4000 रुपीज़. देन नेक्स्ट ट्रे एंड नाइफ, प्राइस ऑफ ईच इज ₹300, number of items we want to use is 20, so 20 into 300 we will get here 6000 rupees. Also we will need bucket, it is of ₹75 each, and the number of items they have to use is 20, and 20 into 75 we will do तो 1500 rupees. सो ये सारे कॉस्ट आप लोगों को बताए गए हैं कि ये हम लोगों को इतने इतने पैसे में हम लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए। तो कॉस्ट हम लोगों को कैसे पता चला, जब हम लोगों ने प्राइस ऑफ ईच को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई किया तब जाके हम लोगों को पता चला कि इन लोगों का कॉस्ट क्या है। ओके, सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड कॉस्ट। अब ये कॉस्ट से हम लोग क्या करेंगे, नीचे के क्वेश्चन जो आपको दिए हैं वो सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एज यू नो चिल्ड्रन, ये आपको क्वेश्चन जो दिया था टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एज दे आर प्लानिंग टू सेटअप द फैक्ट्री, तो हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो लोगों को स्टार्ट करना है फैक्ट्री, तो किस तरीके से वो लोग करेंगे और कितना अमाउंट चाहिएगा, दैट ऑल थिंग्स दे आर प्लानिंग। सो वी विल ऑल्सो हेल्प देम टू नो कि कितना चाहिए होगा उनको सेटअप करने के लिए फैक्ट्री कॉस्ट। सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट this amount by adding all this, we will help them. 3000, 40,000, 4,000, 6,000 and 1500, ये सारों को हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट हम लोगों ने अभी निकाला है उसको ऐड करेंगे, सो दैट वी विल गेट अवर आंसर 54,500 रुपीज़। मतलब टोटल उन लोगों को अगर ये फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उनको कितना अमाउंट चाहिएगा, ₹54,500 रुपीज़, लाइक दिस। एंड दे आर टेलिंग दैट फ्रेश फिश इन 1 मंथ इज इक्वल्स टू 6000 kg। जैसे कि आप लोगों को बताया है कि फ्रेश फिश जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रेश फिश इन 1 मंथ दे आर प्लानिंग, कि उन लोगों को वो लोग प्लान कर रहे हैं कि फ्रेश फिश को हम लोग ड्राई करेंगे
1 मंथ में 6000 kg जो फ्रेश फिश को ड्राई करने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर वो लोग जो है फ्रेश फिश को 1 मंथ में 6000 kg जो है उसको ड्राई करने वाले हैं, सो व्हाट थिंग दे विल गेट, सी। तो अब उसका ही सारा कैलकुलेशन जो है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी फ्लोरम्मा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट for 6 kg of fresh fish. We buy fresh fish for ₹15 per kg. We sell dried fish for ₹70 per kg. अब ये जो फ्लोरम्मा है वो भी एक फिशर वुमेन है जो बता रही है कि वो लोग भी जो है इस तरीके से जो है सारी चीज़ों में प्लानिंग में हेल्प कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 6 kg ऑफ फ्रेश फिश जो अगर हम लोग ड्राई करें तो कितना हमको अमाउंट मिलेगा, मतलब कितनी ड्राइड फिश जो है हम लोगों को मिलेगी, और साथ ही में कितना हम लोग जो है अमाउंट मिलेगा, हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है, लॉस होता है, वो सारी चीज़ें। वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर के जी। अब वो लोग बता रहे हैं कि वो लोग ₹15 पर kg में जो है फ्रेश फिश बाय करेंगे और देन दे विल ड्राइड। वी सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर kg। अब वो लोग फ्रेश फिश बाय करेंगे ₹15 में और वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उसको सेल करेंगे 70 पर kg, तो दैट मीन्स दे विल गेट प्रॉफिट ऑब्वियसली। सो कुछ क्वेश्चंस उन लोगों के माइंड में आ रहे हैं जो हम लोग उसको यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल A1, वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg फ्राइड फिश, ड्राइड फिश। तो 6 kg अगर वो लोग फ्रेश फिश ला रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी वो लोग फ्रेश फिश ला रहे हैं तो जब उन लोग उसको ड्राई करते हैं तो उसका अमाउंट जो है वो लेस हो जाता है। तो अगर 6 kg फ्रेश फिश है तो वी विल डिवाइड दिस 6 by 3, सो व्हाट वी विल गेट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन्स they will get 2 kg dried fish. So we can write here 2 kg dried fish. Then B1, for 6 kg fresh fish we have to pay 6 into dash is equals to ₹90. तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ₹90 मिलेगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 15 is equals to 90. Then C1, we will sell 2 kg dried fish and get 2 into dash is equals to rupees dash। मतलब अगर वो लोग सेल कर रहे हैं 2 किलो ड्राइड फिश तो उन लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू ड्राइड फिश, क्योंकि ड्राइड फिश का वो लोग अमाउंट क्या रखने वाले हैं, ₹70। सो इफ यू विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 70 वी विल गेट 140, दैट मीन्स 2 7 जा 14 और 0 का 0, दैट मीन्स ₹140 टोटल उन लोगों को मुनाफा होगा। सो वी विल राइट हियर 2 इंटू 70 दैट इज ₹140। देन नेक्स्ट, सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। अगर वो लोग 6 किलो फ्रेश फिश जो है वो लोग ड्राई कर देते हैं तो उन लोगों को कितना अर्निंग्स होगा, दैट मीन्स 140 माइनस 90 इज इक्वल्स टू ₹50। देन इवन बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज़ डैश इंटू 1000 इन 1 मंथ। वो लोग बोल रहे हैं अगर हम लोग 6000 kg फ्रेश फिश को जो है ड्राई कर देंगे तो उन लोगों को कितना अमाउंट अर्निंग होगा। सो 50 इंटू 1000 दैट इज इक्वल्स टू 50,000 इन 1 मंथ, मतलब 50,000 का उन लोगों को जो है फ़ायदा होगा इन 1 मंथ। Okay, so like this we have completed this one. Then in also NCERT textbook page number 15 this part is given and this is the last part or last exercise you can see. Let's see Jhansi, I found that 6000 kg fish we would need 1500 kg salt every month। अब बोल रहे हैं कि जब हम लोगों को फिश को ड्राई करना है तो हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की। एवरी वन 1500 kg सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स प्राइस इज़ ₹2 पर kg। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सॉल्ट का प्राइस कितना है, 2 पर kg, ₹2 पर kg। सो मंथली कॉस्ट हम लोग उसका निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए सॉल्ट 1500 इंटू 2 इज इक्वल्स टू रुपीज़ डैश, मतलब महीने के सब हिसाब से अगर वो लोग कैलकुलेट करें तो 1500 kg सॉल्ट उन लोगों को लग रहा है हर महीने और ₹2 का है तो हम लोगों को कितने का सॉल्ट पड़ेगा, ₹3000। 1500 इंटू 2 इफ यू विल डू देन वी विल गेट 15 2 जा 30 एंड 2 0 का 2 0, मतलब ₹3000 उन लोगों को चाहिएगा। देन B1 पैकिंग एंड बस चार्जेस। अभी जाहिर सी बात है जब वो लोग फैक्ट्री ओपन करेंगे तो वो लोग उसको सेल भी करेंगे, सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट वो लोग खरीद ले हैं वो उसको सेल भी करने वाले हैं, मतलब फ्रेश फिश ला के ड्राई फिश करके उसको सेल करने वाले हैं, तो बस चार्जेस वगैरह लगेगा। सो पैकिंग एंड बस चार्जेस इज इक्वल्स टू ₹3000। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश इज रुपीज़ डैश। फजीला आगे फिर बोल रही है, देखो क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पर। पहले हम लोग कैलकुलेशन पार्ट देख लेंगे कि टोटल मंथली कॉस्ट कितना है। टोटल मंथली कॉस्ट आप लोगों को बताया पैकिंग एंड बस चार्जेस का ₹3000, राइट। एंड दे आर टेलिंग दैट फिर बाद में उसको ड्राई करना और सेल करना दोनों के लिए चाहिएगा, तो 3000
इसका, और 3000 ये जो है सॉल्ट लगा के हम लोग को जो सारे प्रोसेस कर रहे हैं उसका। तो मतलब टोटल हम लोग अगर मंथली कॉस्ट देखेंगे तो कितना हो रहा है, 3000 + 3000 इज इक्वल टू 6000। दैट मीन्स अभी फजीला बोल रही है कि जो जब वो प्रेसिडेंट है इसलिए वो बोल रही है कि हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों को नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ। सो हाउ दे विल चेक इट आउट, अर्निंग्स वो लोग चेक कर रहे हैं कि कितना मिलेगा हम लोगों को। सो 50,000 minus 6,000, right? So if we will calculate this, we will get here 10 में से 6 जाएगा तो 4 and 4, that means 44,000. So children, here is some printing mistake, so you can correct it here and you can write it here 44,000. So see here children, this much amount they are getting here. So Fazila is saying last statement that sounds very good. Our calculation tells us every month our bank will earn rupees 44,000. Check to see if you all get same answer. So हमने अभी चेक करके देखा कि हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। That means 50,000 में से 6,000 माइनस कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 44,000. That means they are getting profit every month and it sounds very good. So इस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे थे and they are successful in their planning. So children, very beautifully we have completed our chapter 1, the fish tale. In that we have already seen this poem part and also we have seen some questions, fishermen in their boats, and we have solved these questions, which boats gets how much and different types of boats. Also children, we have seen the practice time questions of fill in the blanks, multiple choice questions and true or false and table of zero and values. So here we have completed our chapter very nicely. So I hope children that you will practice this questions twice at home to get good marks in your exam and be prepared for your next chapter in second session. So here we have completed our chapter number 1. Your duty children is to revise this chapter twice at home. Thank you. Stay safe. Bye bye.